Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Now today we are starting with our next unit of unit 7, property of the bulk matter. Then what is in this one unit? तो ये यूनिट है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बल्क मैटर की, मींस हैविंग द मैटर्स हियर थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. देन हियर वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस. Okay, so there this one chapter we are dividing into different three part. In first one part we will read their mechanical property of the solids. Okay, solid की mechanical property means how much elastic property of the solid is take place, कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी शेप और साइज में कितना चेंज आएगा, इलोंगेशन, कंप्रेशन, हाउ मच चेंज विल बी देयर. देन ड्यू टू चेंज इन द साइज एंड शेप, देन वी विल कॉल इट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, दो प्रॉपर्टी हम रीड करेंगे सॉलिड्स की, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हाउ स्ट्रेन वी विल अप्लाई देयर, देन स्ट्रेस विल बी टेक प्लेस ऑन द सॉलिड मटेरियल, एंड हाउ मच इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल इज देयर. So second part of the mechanical property of the fluid. Then here we will read about the mechanical property of the liquid. Then this one we are dividing into two part. In first part that will be hydrostatic, and in this one second part that is a hydrodynamic. सेकेंड पार्ट में क्या है? हाइड्रोडायनेमिक. तो हाइड्रोस्टैटिक क्या रहेगा कि जिसके अंदर क्या है, लिक्विड रेस्ट में रहेगा. सो हियर व्हेन लिक्विड विल बी एट रेस्ट, देन वी विल रीड द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, दैट व्हिच प्रॉपर्टी विल बी एक्ट देयर व्हेन लिक्विड विल बी इन द स्टेबल पोजीशन, द रेस्ट पोजीशन. Next will be hydrodynamic. Then in this hydrostatic we will read bit of Pascal law like this one, how their lifting of this weight will be take place, that application hydraulic lift, that we will read about this one, hydraulic brake we will read here. Second, hydrodynamic. Hydro means your liquid only, dynamic means in motion. When liquid will be in motion, then what are the property will be take place due to the flow of the liquid. So here we will read about that property of the liquid when property will be in motion, liquid will be in motion. Then third one is the thermal property of the matter. Thermal property means that is a heating effect. Okay, कि heat और temperature की वजह से क्या 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 property act होती है, that we will read about this one. Heat transfer how take place, कि heat transfer कैसे होती है, different mediator will be take place, radiation, convection, conduction, these different term we will read in this one part. So here this one unit we are dividing into their three part: mechanical property solid, mechanical property of the fluid can be at stable and at be in the motion, and third one thermal property of the matter means heating effect की property matter की. So next we are starting our first part only beta, mechanical property of the solid की mechanical property. So first our deforming force. इनसे पहले क्या हम कुछ टर्म पढ़ेंगे कि forces क्या क्या होते हैं. deforming force, first of all deforming force क्या होता है, that is a force on a body acting which produce a change in the shape of the body instead of its state of rest and the uniform motion. कि deforming force एक हमने पढ़ा था restoring force. ओके, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे उसको रिमूव करते हैं देन इट विल बी कम बैक इन इट्स पोजीशन. फॉर एग्जांपल स्प्रिंग हम ले रहे हैं, स्प्रिंग के ऊपर क्या हम दो टाइप से फोर्स लगा सकते हैं. इलोंग करेंगे तो क्या होगा, साइज कम होगा, बट जैसे स्प्रिंग को आप छोड़ते हो, रिमूव करते हो, देन व्हाट हैपन, इट विल बी कम बैक सेम पोजीशन, वो अपनी ओके. तो वापस आने के लिए क्या होगा, जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, फॉर एग्जांपल इरेजर आपने ले रखी, इरेजर को आप खींच रहे हो तो उसकी लेंथ में क्या आता है, चेंज आता है, वो इलोंगेट हो जाती है, बट जैसे ही हम उस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो वापस उसी पोजीशन में चली जाती है. तो इस फोर्स को, जो फोर्स उसको वापस उसी पोजीशन में ला रहा है, दैट रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस वन फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स. उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. बट जो चेंज ला रहा है उसको हम बोलते हैं दैट चेंज ऑन द बॉडी by which we applied force, that we will call it deforming force. उस फोर्स को क्या बोलते हैं, deforming force. मींस बॉडी कितनी डिफॉर्म हो रही है, कितना चेंज हो रहा है बॉडी की शेप और साइज के अंदर. सो दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स शेप and size of the body, then we will call it deforming force. Now last next your elasticity and plasticity. आपके जो मैटर्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी होती है बेटा, इलास्टिसिटी होते हैं, कुछ प्लास्टिसिटी होते हैं. अब इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. ओके,
तो यहाँ से जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अभी स्प्रिंग अगर हम लेके चल रहे हैं तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ ये है। ओके, तो हम इसको क्या करें, इलोंगेट भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। दो तरीके से स्प्रिंग को आप खींच भी सकते हो, इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो। तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसका शेप साइज चेंज करने के लिए जो फोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो यहाँ से फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा, इसकी लेंथ कंप्रेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्प्रिंग की शेप कैसी हो जाएगी, कंप्रेस होके ऐसी हो जाएगी। यस ना, इतना चेंज आ जाएगा। तो कंप्रेस होने के बाद जो हमने ये फोर्स लगाया था, इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं, जो इसकी शेप को चेंज कर रहा है। क्लियर। तो चेंज कर, जैसे इसको रिमूव करेंगे, इस फोर्स को जैसे अपने हाथ को हटाया तो क्या होगा, स्प्रिंग वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, जिस फोर्स के साथ वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, और इलास्टिसिटी किसको कह रहे हैं, इलास्टिसिटी ये मैटर की प्रॉपर्टी है, इस मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, कितनी जल्दी, जैसे ही हमने फोर्स लगाया है कितनी जल्दी वो अपनी वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा। अगर हम सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या इसकी पोजीशन चेंज होएगी, नहीं होगी, इट विल बी रिमेन सेम ओनली। ओके, अगर आप इसकी जगह क्या कर रहे हो, इरेजर लेके चल रहे हो, इरेजर का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, इसकी लेंथ क्या कर जाएगी, कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगी। बट जैसे ही हम अब इसकी लेंथ में चेंज करने, इरेजर की लेंथ में चेंज हुआ जब हमने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स को हमने क्या बोला, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे उसको रिमूव करेंगे वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद इसकी शेप और साइज चेंज करना, कितना चेंज हुआ हमारे फोर्स अप्लाई करने के बाद, इसके साइज में कितना चेंज हुआ, दैट इज अ डिपेंड अपॉन योर प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी। उस मैटर की इलास्टिसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, कि इलास्टिक, दैट मटेरियल इज इलास्टिक और नॉट, और प्लास्टिक, तो उस पर डिपेंड करता है मैटर पे कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, कि इसके जो साइज होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, इसको जैसे ही रिमूव कर दिया, इस फोर्स को रिमूव कर दिया, तो वापस अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो कितनी जल्दी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ तो क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आ पाएगा, व्हाट हैपेंड, इट विल बी ब्रेक ओनली। क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वापस अपनी पोजीशन में ही नहीं आएगा। तो ये हर एक मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वापस आ पाता है कि नहीं आ पाता। सो इलास्टिसिटी क्या होता है, दैट मींस रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, दैट इज नोन एज द इलास्टिक। एंड प्लास्टिक इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न when deforming force are removed, द प्लास्टिसिटी, दैट इज इनएबिलिटी। वो बॉडी क्या है, अगर हम फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस फोर्स को रिमूव करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, देन बॉडी विल नॉट कम बैक अगेन ऑन दी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। सो दिस वन प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्लास्टिसिटी ऑफ द मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर की प्लास्टिसिटी हाई है। ओके, so these are the two property of the material, that is the elasticity and plasticity, and the deforming force, the force to apply to change the shape of the body. I hope you understood better difference between these terms. Now first one we will read about their stress. Okay, what is stress there? Stress क्या होता है, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, नाउ हियर दिस वन स्प्रिंग ओनली वी आर टेकिंग, एनी मटेरियल यू कैन टेक। ओके, इसके ऊपर क्या है, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, देन देयर फोर्स वी आर अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट हैपेंड, इट विल बी चेंज इट्स ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम हियर टू देयर। तो क्या होगा, स्प्रिंग खींच जाएगा बेटा, इतना लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, चेंज इन दी लेंथ। तो हमने जो ये फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। We will call it deforming force to change its shape and size. Clear? So how much force we are applying this one, then again as we remove this one, then it will become back again its original position, then this one force we will call it restoring force. इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके बाद क्या है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना।
ओके तो स्ट्रेस क्या कहता है, रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी। जब हमने क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो क्या है, अगर हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे तो अंडरस्टूड, अगर वो बॉडी क्या है इलास्टिक बॉडी है, देन बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओके वो कंप्लीट ओरिजिनल में आएगी या नहीं आएगी, दैट इज अ डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। ओके कि अगर हम इस टाइप के मटेरियल को अगर हम खींच रहे हैं या हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इस ऑन दिस मटेरियल दैट इज इम्पॉसिबल, बट दोज मटेरियल हुज आर इलास्टिक, then on that material it is possible, as we are applying their deforming area when the deforming force act on it, that is known as the stress। restoring force acting per unit area, restoring force हम already पढ़ चुके हैं क्या होता है, restoring force is directly proportional to the change of the elongation and compression। negative because direction of your elongation and this force are acting in opposite direction। हमने डिस्प्लेस किया, इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इधर लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स, तो बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स why here negative sign will be there, removing this one sign, so that's why here will be F equal to kx, this one our restoring force acting per unit area, which area it is acting, that we will call it stress, its unit will be Newton per meter। अब force per unit area already हमने पहले पढ़ चुके, क्या होता है प्रेशर also, यस ना, प्रेशर भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो प्रेशर एंड योर स्ट्रेस बोथ आर हैविंग सेम एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और you can say Pascal also, but in pressure force per unit area any type of the force will be there, but in stress that will be a restoring force only will be active there। so dimension formula of this one we can write like this one, M, now MALB then TC, here A, B, C you can find or not, how we can find beta, Newton per meter square will be there। so dimension formula of this one we can write like this one, MLT, we have to find out value of ABC, how we can find their Newton per meter, Newton we can write their force, force we can write their mass into acceleration, क्या होता है आपका force per unit area, इसी को हम ओपन कर रहे हैं, that we will convert this one force into area, divide by area in fundamental units। तो fundamental units क्या होती है, force, mass into acceleration, एक्सेलरेशन को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, और एरिया क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर, सो मास वी कैन राइट देयर केजी, एक्सेलरेशन वी कैन राइट देयर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर per second square means -2 we can write there, and this one your length square, meter square, so as we will write upper side then it will be your -2। so as we will solve this one, then here we can write there kg, here +1 -1 -2, then it will be -1, then second -2। okay so here dimension formula of this one we can write there, M, mass stands for their power is 1 kg, and length stand for the meter, meter its power is -1, then T stand for the second, then second their power is equal to your -2। so this one will be dimension formula of our stress, like this one we can find the dimension formula of any quantity। सबसे पहले तो उस क्वांटिटी की जो यूनिट है बेटा, उस यूनिट को हमने फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है, और फंडामेंटल यूनिट करने के बाद हमने क्या है एमएलटीज में कन्वर्ट करना है, उनकी पावर चेक करनी, कैसे कैसे पावर है, उसी पावर के अकॉर्डिंग क्या है, एम स्टैंड फॉर योर मास, L स्टैंड फॉर द लेंथ, एंड T स्टैंड फॉर द टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग सबकी पावर डाल के क्या कर देना हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना है। ओके नाउ नेक्स्ट विल बी योर टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब हमने पढ़ा था स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, की बॉडी वापस से डिफॉर्म कैसे, डिफॉर्म होने के बाद वापस से ओरिजिनल पोजीशन में कितनी देर में आएगी, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगेगा रेस्टोरिंग फोर्स, तो उसको हमने क्या बोला रेस्टोरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हमने क्या है डिफरेंट 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ओके डिफरेंट 3 पार्ट मींस टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, एंड थर्ड वन योर टेंसाइल स्ट्रेस।
अब before this one, the normal stress and tensile stress. Normal stress means here we are dividing this one according to the change the shape and size after the applying their deforming force. जैसे हम deforming force उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप और साइज किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी एंगल के अकॉर्डिंग कि उसके एंगुलर टेंजेंशियल चेंज आ रहे हैं. तो उसी बिहाफ पे क्या है, हमने स्ट्रेस को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो टाइप ऑफ द स्ट्रेस वी कैन सी देयर नॉर्मल स्ट्रेस एंड योर टेंजेंशियल स्ट्रेस. Normal stress we can say there is a two part, tensile and your compression. So tensile stress, when there is an increase in dimension of the body along the direction of the force, we can say along the length of the body, along length of body changes take place. So this one we will call it tensile stress. For example, we are taking any material here whose length we are taking there L, कि इनिशियली कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ क्या है, L है. तो जैसे ही हमने क्या है इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, साइड चेंज हो गया. तो एज वी रिमूव दिस डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट्स चेंज इन द लेंथ विल बी टेक प्लेस. जैसे हमने फोर्स लगाया तो इसकी क्या आ गया, लेंथ के अलोंग चेंज आ गया. हमने फोर्स लगाया, इसको खींच दिया. दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको खींच भी सकते हो. खींचोगे तो बड़ी हो जाएगी, कंप्रेस करोगे तो छोटी हो जाएगी. तो चेंज दोनों में ही चेंज किसके अलोंग आ रहा है, लेंथ के अलोंग आ रहा है. तो लेंथ के अलोंग जो भी चेंज आएगा, लेंथ के अलोंग जो भी चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो बाय अप्लाइंग दिस वन ईयर deforming force, then as remove this deforming force, restoring force will be act there along the length के according. Force per unit area along the dimension, you can say along the length of the body, we can say that is known as the tangential stress, या फिर we can say there longitudinal stress also. इसको longitudinal stress भी बोल देते हैं बेटा, along the length which is acting there force per unit area. Next will be compression stress, that will be here for the compressing its length को compress करने के लिए, dimension को compress करने के लिए. ये तो क्या था, elongate कर रहे थे. अगर हमने force apply किया कि इसकी length क्या था, original से change हुआ, compress हो गई. How much change? Let there small changes del L. तो compress करने के लिए जो हमने क्या है, restoring force per unit area हम read करें, that is known as the compression stress when there is a decrease in the dimension. Dimension में क्या हो रहा है, decrement हो रहा है. Next will be tangential stress. Tangential stress क्या होगी, when deforming force act tangentially to the surface of the body. कि हमने क्या कर रहे हैं, deforming force अगर हम अप्लाई करें tangential here any block there, तो इस ब्लॉक पे क्या है बेटा, ऐसे फोर्स लगाया कि इसकी लेंथ में चेंज नहीं आया. किसमें चेंज आया, इसके एंगल में चेंज आया. कि दिस वन बॉडी इज अ शिफ्ट आफ्टर अप्लाइंग देयर डिफॉर्मिंग फोर्स. सो दिस वन बॉडी विल बी शिफ्ट लाइक दिस वन. कैसे शिफ्ट होगी, ओरिजिनल पोजिशन से ऐसे शिफ्ट होगी. ओके, तो यहाँ पे जो चेंज आया दैट इज योर थीटा. क्लियर, कितना चेंज आया, थीटा में चेंज आ गया. दिस वन आवर थीटा. So as we are applying deforming force, that deforming force acting on it tangentially, then remove deforming force, restoring force per unit area, it is known as the tangential stress. ओके, कि अगर लेंथ में हम चेंज कर रहे हैं then it will be a longitudinal. If we are changing in the volume, then it will be volumetric. If it will be along the angle, then we will call it tangential stress. Okay, and in all cases that your force formula will be only restoring force per unit area, that is known as the stress only. I hope you understood beta. By using this one formula only we can write their unit Newton per meter square. Okay, so these are the type of the stress, how we can define there. This one stress, restoring force here acting in a different way, then this one force. Now next will be our strain. Strain क्या कहता है कि that is a ratio of the change in the dimension to the original dimension. कि अगर किसी की बॉडी की ओरिजिनल जो डायमेंशन है, हम स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसकी डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है. ओके, सो दिस वन चेंज
to the original position, that is known as the strain. Okay, for example, here any material we have taken, its original length let we are taking there L. इसकी original length क्या है L. अब हम stress पढ़ चुके, stress क्या है, to change its shape and size, then we are applying there some force, deforming force, then force per unit area, that is known as the स्ट्रेस. कितना फोर्स कितने एरिया में लगेगा उसी को क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस कह रहे हैं. तो किस लेंथ में, ये अगर ओरिजिनल लेंथ है, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया. स्ट्रेस वी आर अप्लाइंग देयर, देन हाउ मच चेंज इन द लेंथ, कि स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में कितना चेंज आए. लेट हियर चेंज वी आर राइटिंग देयर डेल एल. डेल का मीनिंग होता है बेटा चेंज इन लेंथ. ओके, सो हाउ मच चेंज, ओरिजिनल लेंथ ये थी, तो यहां से यहां तक का कितना चेंज आ गया, इस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन द ओरिजिनल पोजीशन. और कितना चेंज आ रहा है, डेल एल कह रहा है, आ रहा है. तो ये क्या कहता है, स्ट्रेन दैट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन. तो डायमेंशन का मीनिंग दैट डायमेंशन कैन बी अलोंग लेंथ वाइज, कैन बी अलोंग वॉल्यूम वाइज, ओके, कैन बी अलोंग योर एंगल वाइज, किसी भी तरीके से हो सकती है. तो अगर लेंथ में, तो स्ट्रेन क्या कह रहा है, दैट इज चेंज in configuration of the material, जो हमने मटेरियल ले रखा है उसकी कितना चेंज आ रहा है, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कि ओरिजिनल उसकी क्या शेप और साइज थी, उनका रेशियो on original configuration. Clear? So here change in dimension. So if we are taking this one diagram, then according to this one we can write there strain will be equal to your change in the configuration along the length, that is changes take place. Then how much change in the length is take place, as we are applying this one force there, del L, we can write there del L, and divide by original configuration. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट दिस वन योर एल ओनली, सो डिवाइड बाय योर एल. So this one ratio is known as the strain. So this ratio we can write there, unit of this ratio, unit, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी अब स्ट्रेन की, by this one formula only we can write there upper side also length, down side also your length, then both side your meter only, so unit will be there यूनिटलेस. इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी क्या है, मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होके क्या बचेगा आपका, यूनिटलेस बचेगा. सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आल्सो, dimensionless, okay, not having any dimension formula. So this one is not having unit and not having dimension. This one our change in configuration to the original configuration. उसके बाद क्या कहता है, that is our type of the strain. अब इसी को, अब हमारे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या अभी बताया, लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, एंगल में भी चेंज हो सकता है. इसी बिहाफ से क्या है, स्ट्रेन को भी 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इफ अलोंग द लेंथ विल बी टेक प्लेस, देन वी विल कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. कि अगर लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है, कि अगर ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन द लेंथ, लेट इट विल बी कंप्रेस्ड, देन हाउ मच चेंज, डेल एल बाई एल. तो कितना चेंज हुआ, डेल एल बाई ओरिजिनल लेंथ. तो इसी चेंज को क्या बोल देंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे. इफ दिस चेंज इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, देन वी विल कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नेक्स्ट आवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक क्या कहता है, कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, देन आफ्टर द अप्लाइड स्ट्रेस, देन देयर चेंज इन द टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम. कि आपकी किसी बॉडी के वॉल्यूम की, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉल ले रखी है, ओके, बॉल के ऊपर आपने फोर्स, उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो उसकी क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हो गया. कितना चेंज हुआ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल, we will call it volumetric strain. उसको क्या बोलेंगे, volumetric strain. कि वॉल्यूम अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है, then we will call it volumetric. लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, then we will call it longitudinal strain. So here we can say if original volume of any body is V, after the compress भी कर सकते हैं बेटा, elongate भी कर सकते हैं, ओके, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. So as we are compressing its volume, then here let their compressed volume del be.
So here we can write there volumetric strain del V by V. Change in the volume to the original volume, then this ratio we will call it volumetric strain. सभी टाइप क्या रहेंगे आपके यूनिट लेस रहेंगे क्योंकि अपर साइड भी सेम डायमेंशन है, नीचे भी सेम डायमेंशन है, सो बोथ विल बी कैंसल विद ईच अदर. नेक्स्ट विल बी शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन क्या कहता है? अलोंग दी लेंथ डिस्प्लेस phi will be there. This one symbol is phi del L by where del L the displacement of the phase on which force is applied and L is the height of the phase. Okay, for example any body is there, then this one is a shifting there. अगर हमने इसके ऊपर force जो है tangentially apply कर रखा है, then it will be shift from the original position. कैसे shift हो रही है कि original ये है, okay, that is equal to after the applying there फोर्स स्ट्रेस के बाद क्या होगा, इसकी पोजीशन में जो चेंज आया वो क्या चेंज आ गया, देन इट विल बी चेंज लाइक दिस वन. ऐसे चेंज आ गया इसके अंदर. ओके, दिस वन चेंज विल बी टेक प्लेस लाइक दिस वन अलोंग द लेंथ. तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो क्या आ गया, एंगल में चेंज आ गया बेटा. यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या था, ये था, यहाँ ये. तो यहाँ जो चेंज आया दिस वन इज आवर एंगल. तो एंगल के अलोंग जो चेंज आता है दैट इज आवर थीटा ओनली. सो दिस वन वी विल कॉल इट शेयरिंग स्ट्रेन. व्हेन डेल एल इज अ डिस्प्लेस ऑन द वन फेज, की एक फेज के अंदर चेंज हो रहा है, एक फेज के अंदर क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है बाय अप्लाइंग देयर स्ट्रेस. देन एज योर एच इज द हाइट ऑफ द फेस, अगर उसकी हाइट क्या है, एल है, तो उसकी चेंज कितना चेंज आया उसकी एक फेज के अंदर, एज वी आर अप्लाइंग दिस वन फोर्स अलोंग द टेंजेंशियली, देन वी विल कॉल इट शेयरिंग स्ट्रेन. ओके, सो नेक्स्ट विल बी आवर हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है, दैट इज टेलिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों में रिलेशन डिफाइन करता है कि ये कहता है कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ही क्या होता है, स्ट्रेन होता है. जितना हम फोर्स पर यूनिट एरिया हम एक्ट करते हैं उतना ही चेंज इन द शेप और साइज टेक प्लेस. ओके, कि किसी बॉडी की है कि अगर हमने ये बॉडी ले रखी है, इसके ऊपर जितना भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही क्या है इसके अंदर चेंज आएगा. सो हुक्स लॉ क्या कहता है, दैट स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस. स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. जितना हम फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं उतना ही क्या आता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आता है. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस वन इज here known as the Hooke's law. So when a wire is loaded within the elastic limit, but ये कहता है within elastic limit, ये नहीं कि हम उसको अप्लाई करते जा रहे हैं क्या हो रहा है, वो स्ट्रेन एक्ट हो रहा है. नो, इट विल बी टिल अ वन लिमिट. एक लिमिट तक होता है बेटा, ऐसा नहीं कि हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये एक लिमिट तक ही मुड़ेगा. ये नहीं कि करते जाओ व्हाट हैपन, इट विल बी ब्रेक. एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो ब्रेक हो जाएगा. कि आप इरेजर है, इरेजर को बैंड कर रहे हैं, वो बैंड हो जाएगी, फिर से आपने छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. ऐसा अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इट विल बी ब्रेक देयर. तो ये जो आपकी कंडीशन है, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दिस हुक्स लॉ विल वैलिड टिल अ इलास्टिक लिमिट. एक इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड रहेगा. आफ्टर दैट लिमिट देन कैन बी ब्रेक. मींस इस लिमिट के बाद हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. टिल योर इलास्टिक लिमिट ओनली वी कैन से दिस कंडीशन, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाई. कि बॉडी में इतना ही एक्सटेंशन होगा जितना हम उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं. एंड अगेन रिपीटिंग दिस वन प्रोसेस अगेन एंड अगेन, देन body will be break down. Okay, so this one Hooke's law will be not valid there. So within elastic limit we can say their stress will be directly proportional to the strain. Stress strain direct equal to our constant. अब ये directly proportional आया तो इसको रिमूव करने के लिए क्या लेते हैं, हमेशा एक constant लेते हैं, that is constant. Here K constant let we are writing there, and this one is known as, this constant is known as the modulus of the elasticity. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इसी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फिर से हम क्या है डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे अलोंग द रेशियो
ratio of the stress and the strain. This one your constant modulus of elastic stress by the strain. So along the different type of the stress, different type of the strain, then we are dividing modulus of the elasticity into different three part. This one part we will do in your next class, how we can define their part of the modulus of the elasticity. So till here revise this one unit, and thank you for watching today our video.